Hello and welcome back to your class 6th. I know it's been quite a while since you have started English. So let's start with a new book in your academic syllabus that has been provided to you, and the name of the book is A Pact with the Sun. Pact का मतलब promise. So a promise with the sun. So basically ये जो book है ये supplementary reader है, मतलब एक a kind of storybook you can say, just to help you understand better how to understand stories, make a more clear view towards stories and stuff. So in this book we shall begin with the first chapter of your book, that is okay. So as per the content we can see the first chapter of your book is A Tale of Two Birds. So let's start with the chapter. So here we see. So before we start reading the chapter, as always, there are few points that have been given in the book, that is A Tale of Two Birds, chapter 1. The few points are: a mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Each found a different home. सो ये बेसिकली जब भी चैप्टर्स में दिए गए हैं ये पॉइंट्स, आगे भी आप देखेंगे दिस हैज़ ऑलवेज बिन गिवन. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ समरी. ये चीज़ें आपको चैप्टर में आगे देखने को मिलेंगी. तो ये शॉर्ट में बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें आप चैप्टर के पहले पार्ट में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन रीडिंग. There once lived a bird and her two newborn babies in the forest. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. One day, there was a big storm. There was thunder, lightning, and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big, heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram a little distant away. सो क्या हुआ, एक समय की बात है जब एक चिड़िया और उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज़ एक फॉरेस्ट में रहते थे. उनका नेक्स्ट नेस्ट यानी कि द प्लेस वेयर द बर्ड्स लिव, वो उन्होंने एक टॉल शेडी ट्री पर बनाया था. एंड देयर वहाँ पर वो जो मदर बर्ड थी वो अपने दोनों लिटिल वंस का बहुत दिन रात अच्छे से ख्याल रखती थी. एक दिन बहुत बड़ा सा स्टॉर्म आया. स्टॉर्म मीन्स आंधी. देयर वाज थंडर एंड लाइटनिंग. बिजली कड़क रही थी, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और बहुत ज़ोर से हवा बह रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे पेड़ गिर गए थे. जो लंबा पेड़ जिस पे इनका नेस्ट था, वो पेड़ जिस पे चिड़िया रहती थी, वो भी उस दिन गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट. उस पेड़ की एक बड़ी सी हैवी सी ब्रांच ने नेस्ट को हिट किया, जिसकी वजह से जो बर्ड थी मदर बर्ड, उसकी डेथ हो गई. फॉर्चुनेटली जो दो बच्चे थे, फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से जो दो छोटे बच्चे थे, एक भारी हवा के झोंके के साथ वो उड़कर फॉरेस्ट के दूसरे साइड पर पहुंच गए. उनमें से एक जाकर गिरा एक केव के पास, जो कि रॉबर्स मीन्स चोरों का एक गैंग था, वहाँ रहता था. वो उस केव के पास रहते थे. तो एक बच्चा वहाँ जाकर गिरा और दूसरा एक ऋषि जी के आश्रम के बाहर, जो कि थोड़ा उससे दूरी पे थे, वहाँ गिरा. लेट्स रीड आगे क्या होता है. Days passed and the baby birds became big birds. One day, the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly, he heard a voice cry out, "Quick, hurry up, there's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry or else he'll slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. तो उस इंसिडेंस के बाद बहुत दिन बीत गए और अब जो बेबी बर्ड्स थी ये बिग बर्ड्स हो चुकी थी, यानी कि ये ग्रो अप कर चुकी थी. एक दिन
एक किसी कंट्री का एक राजा उस फॉरेस्ट में शिकार करने को आया। उन्होंने देखा कि एक डियर है और उसके पीछे चलने लगे। इट रैन, और वो डियर भागते भागते फॉरेस्ट के अंदर 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 जाता गया, डीप इनटू द फॉरेस्ट, और उसके पीछे पीछे किंग भी जाने लगे। जल्दी ही किंग अपना रास्ता भूल गए और उन्हें नहीं पता था कि अब वो कहाँ हैं। वो चलते रहे और काफ़ी समय के बाद वो भी फॉरेस्ट के दूसरे साइड पर पहुंच गए। अब वो बहुत थक चुके थे, तो वो अपने घोड़े से उतर गए और उन्होंने सोचा कि एक ट्री के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, जो कि एक केव के पास थी। केव से कुछ याद आ रहा है आपको? एक बेबी बर्ड जाकर किसी केव के पास गिरी थी। सो लेट्स सी। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप। अचानक से उनको एक आवाज़ आती है चिल्लाते हुए, जल्दी करो, कोई है इस पेड़ के नीचे, जाओ जल्दी से उसके सारे ज्वेल्स, मतलब जो भी ज्वेलरी और महंगी चीज़ें उसके पास वो, और उसका घोड़ा ले लो, जल्दी करो वरना वो भाग जाएगा। ये सुन के किंग अमेज्ड हो गए, शॉक्ड हो गए। उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने देखा एक बड़ी सी ब्राउन कलर की बर्ड है जो ट्री पर बैठी हुई है। उन्होंने कुछ फेंट आवाज़ें भी सुनी, फेंट मतलब धुंधली सी आवाज़ें भी सुनी जो केव की तरफ से आ रही थी। वो जल्दी से अपने घोड़े पे बैठे और जितना तेज़ हो सका उतने तेज़ वहाँ से भाग गए। नाउ लेट्स सी, ये अगेन दिस इज़ द नेक्स्ट। इतना समझ में आया आपको? आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दिस। सो आगे क्या होगा? नाउ इट विल बी टोल्ड, ये जो आपको पॉइंट्स दिए हैं इट विल टेल कि आगे क्या होना है चैप्टर में। सो व्हाट आर द पॉइंट्स? द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगैन. He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. So let's see what happens ahead. Soon, he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. ऋषि आश्रम से आपको क्या याद आ रहा है? एक दूसरी बेबी बर्ड जो थी वो ऋषि के आश्रम के पास जाकर गिरी थी ना। सो ये वहीं का जिक्र है। सो लेट्स रीड. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly, he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The Rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the bird outside the cave," he said to himself aloud. "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then the Rishi entered the ashram. क्या हुआ? भागते भागते ऋषि जल्द ही एक आश्रम के पास जाकर पहुंचे। वो ऋषि का आश्रम था। किंग वहाँ पे रुके, अपना हॉर्स एक पेड़ से बांधा और शेड देखकर वहाँ बैठ गए। फिर से उन्हें एक आवाज़ आई और ये आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी, जो कि क्या कह रही थी? "हमारे आश्रम में आपका स्वागत है सर, अंदर जाकर आराम करिए, ऋषि अभी थोड़ी देर में आते होंगे। वहाँ पॉट में कुछ ठंडा पानी रखा है, आप अपने आप को कंफर्टेबल रखिए।" किंग ने जब ऊपर देखा तो उसने फिर से देखा कि एक ब्राउन कलर की बर्ड है जो पेड़ पे बैठी, और वो फिर से अमेज्ड हो गए और उन्होंने क्लियरली अपने तेज़ आवाज़ में बोला कि ये तो एक वैसी ही बर्ड है जो मुझे केव के बाहर मिली थी। उसकी बात सुनकर उस बर्ड ने क्या आंसर दिया? "हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, यू आर राइट। वो मेरा भाई है, और लेकिन उसने दोस्ती कर रखी है रॉबर्स से, यानी कि उसकी दोस्ती चोरों से है, और वो अब उन्हीं की भाषा बोला करता है, मुझसे भी बात नहीं करता।" और जैसे ही उसने ये कहकर ख़त्म हुआ उतने देर में ऋषि वहाँ से आश्रम के अंदर एंटर कर गए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस अहेड इन द चैप्टर. सो "Welcome, sir," he said to the king. "Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while. Then you can share my food." The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. "The forest is full of surprises," he said. The holy man smiled and said, "After all, one is known for the company he keeps. The bird has always heard the talks of robbers. He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now, come inside and rest. I'll tell you more about this place and these birds." आगे क्या होता है चैप्टर में? जैसे ही ऋषि आते हैं वो कहते हैं, "वेलकम सर, अंदर आइए और अपने आप को ऐसा फील करवाइए जैसे आप अपने ही घर पर हों। आप थके हुए लगते हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए और फिर आप मेरा खाना शेयर कर सकते हैं।
राजा ने ऋषि को बताया और अपने दो बर्ड्स उन्होंने देखी उन दोनों की स्टोरी बताई और साथ ही साथ ये भी बताया कि उन दोनों का बिहेवियर कितना अलग है। जिस पर ऋषि ने उन्हें जवाब दिया कि दिस फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, मतलब ये जो जंगल है यहाँ पे हर पल आपको नए सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन फॉर द कंपनी ही कीप्स। इतना ये कहने के तुरंत बाद ऋषि, होली मैन यहाँ पे ऋषि के लिए बोला जा रहा है, तो ऋषि हंसते हुए फिर बोलते हैं, आखिर बात भी तो सही है ना, एक इंसान अपने कंपनी के पीछे ही तो जाना चाहता है। ये आपने पहले भी सुना होगा, अ पर्सन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी कि आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा ही आपका आचरण होगा, वैसी ही चीज़ें आप सीखेंगे और वैसा ही आप दूसरों के साथ बिहेव करेंगे। सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू कीप अ गुड कंपनी। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। फिर वो एक्सप्लेन करते हैं उन्हें कि वो जो चिड़िया थी जो आपको केव के पास मिली थी, उसने हमेशा चोरों की बातें सुनी थी, तो वो उन्हीं को कॉपी करता है और उन्हीं के जैसी बातें करता है। ये जो है दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, इसने वो बातें कही आपसे जो इसने हमेशा सुनी है या जो मैं लोगों से कहता हूँ। तो बेसिकली दोनों ने क्या क्या सीखा, जिस कंपनी में दोनों बर्ड्स रह रही थी उन्होंने अपने अपने कंपनी से वो बातें सीख ली। ये जो बर्ड है ये लोगों को आश्रम में वेलकम करता है और उनको अच्छे से ट्रीट करता है। चलिए अब अंदर चलिए और आराम करिए, मैं आपको इस जगह के और इन चिड़ियों के बारे में और बातें बताऊंगा। सो व्हाट डिड वी, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। सो व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द चैप्टर नाउ? क्या सीखा आपने इस चैप्टर से? सिंपल सा एक मैसेज है दैट जैसी कंपनी आप रखेंगे दुनिया में आपकी पहचान उसी कंपनी से होगी। आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, आप अच्छी बातें सीखेंगे तो लोग आपको भी अच्छा कहेंगे। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे आप बुरी बातें सीखेंगे और आप भी बुरे बन जाएंगे, क्योंकि छल कपट करना तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को आता है, लेकिन ये तो आपका फैसला है ना कि आपको अच्छी चीज़ें सीखनी है या बुरी। तो जितने भी ऐसे लोग आपके अगल बगल आते हैं जो किसी भी तरीके से आपको डिच करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं या छल कपट सिखा रहे हैं, उनसे दूर रहिए, उनकी चीज़ों को देखिए। अगर उन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं अपने लाइफ में जिससे आपको लग रहा है कि कोई चीज़ गलत है, तो बिल्कुल ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मम्मी पापा से सीखने की, अच्छी बातें सीखने की, अपने अच्छे टीचर्स से सीखने की, क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या चीज़ें बुरी हैं उसका फ़र्क समझिए। वाई? बिकॉज आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे आप वैसी बातें सीखेंगे। तो अच्छे लोगों के साथ रहिए और अच्छी बातें सीखिए। So these are few of the questions that have been asked to you and this will be your homework for today. How did the two baby birds get separated? Question number 2, where did each, इसका मतलब है इस क्वेश्चन का कि दोनों बेबी बर्ड सेपरेट कैसे हो गए। नेक्स्ट, where did each of them find a home? इस क्वेश्चन का मतलब है दोनों को घर कहाँ कैसे कैसे मिला। What did the first bird say to the stranger? पहली वाली बर्ड ने स्ट्रेंजर से क्या बोला। फोर्थ क्वेश्चन, What did the second bird say to him? दूसरी वाली बर्ड, पहली वाली बर्ड केव वाली है, दूसरी वाली बर्ड ऋषि जी के आश्रम वाली है, तो उन्होंने क्या बोला। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव? ऋषि ने ये बात कैसे समझाई कि दो अलग बिहेवियर का कारण क्या था वो बर्ड्स के। एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑप्शन समरी को बेस्ट, पूरे के पूरे स्टोरी को बेस्ट तरीके से समराइज करता है। A bird in hand is worth two in the bush. One is known for the company he keeps. A friend in need is a friend indeed. बहुत obvious सा आंसर है. We have been seeing this. So the answer of this question will be this. Sixth का second question. One is known by the company he keeps. So next 5 questions मैं आपको next video में बताऊंगी. I hope आपको ये समझ में आ गया हो and there is no doubt about it. So take care. Stay at home and study well, kids. Bye.